Hello children, this is Math Magic of Standard 5. Children, before I start my explanation of today's chapter, I would like to revise some of the topics. That is, simple definitions are given for square. What do we call a square? All sides of a square are of equal length. Square में सारी sides जो है वो same होती है. Same way rectangle, what do we call a rectangle? All sides are not equal in length. सारी साइड एक समान नहीं होती. The two pairs of opposite sides are of equal length. तो opposite sides जो है वो इसकी length equal होती है. So that is rectangle. Now two terms are there, that is perimeter and area. What do we call a perimeter? The distance around the edge of a shape is called a perimeter. This term you know very well, but this word perimeter is new for you. So here 4 arrows you can see. So the length of all 4 sides are added. The answer is perimeter. Same way the area, the amount of space inside a shape. तो शेप के अंदर का जो एरिया है, मतलब स्पेस है या प्लेस है, उसे कहेंगे एरिया. सो हियर यू कैन सी डॉटेड लाइन एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स आर ड्रॉन. सो हियर इन दिस शेप हाउ मच एरिया इट कवर्स? सो टोटल देर आर 9 स्क्वायर्स. ओके, सो इट कवर्स 9 स्क्वायर्स. और इसे यूनिट में कैसे बताएंगे, दैट आई विल एक्सप्लेन इट इन दिस चैप्टर. So now how to calculate perimeter? The perimeter of a figure is the distance all the way around the figure. For example, here one figure is given where a rectangle is there. As we know, opposite sides are of equal length. So length is 9 centimeter and width or breadth is 5 centimeter. So 9 centimeter plus 5 centimeter plus 9 centimeter plus 5 centimeters. That means 2 times 9 and 2 times 5 have to add. So we will get the perimeter. Now here area is given. See, in perimeter, for example, centimeter is given. I would like to give you some information regarding the units you write. So when we add 9 plus 9, 18. 5 plus 5, 10. So 18 plus 10, that is 28 centimeter. That is the perimeter. Unit, writing unit is compulsory, children. So in perimeter, whatever unit is given, the same unit you will write in the answer. But in area, what is this? The area of a figure is the number of square units that cover the surface of the closed figure. So here, for example, length, how many squares it covers? Let me give you this information. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So length is 9 units. Okay. And what about width? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So width or breadth is equal to 5 units. Okay. So here 9 unit multiplied by 5 unit, that means it becomes 45 units, but it given square units. Okay, because unit 9 unit multiplied by 5 units, so unit multiply by twice, so it becomes square. So whenever you write the area, first you have to write square and then after unit. For example, centimeter is given, so write square centimeter. If meter is given, so write square meter. Either you can write centimeter square, both are same, or meters square, like that. Okay, so unit is squared. Fine. Now here it is given, find the area. Here a figure is given, some squares are given in between these colored. Some of the boxes are filled with color. So how many boxes are there? We can count it down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30,
2. So here it is 32 units is covered. 32 square units. Okay, square units are covered by this figure. Clear, children? So I hope this one is clear to you. Now our today's chapter is chapter number 3, how many squares. So in this chapter we have to count some the squares, have to find out perimeters and also area. So here it is, one figure is given. So what is given in the explanation? The first one is given, measure the side of the red square on the dotted sheet. अगर हम इसे मेजर करेंगे तो ये होगा 1 सेंटीमीटर का. फाइन. Draw here as many rectangles as possible using 12 such squares. तो हमें रेक्टेंगल ऐसे बनाने हैं, ऐसे डॉट्स को ज्वाइन करके ऐसे कुछ रेक्टेंगल बनाने हैं कि जिससे 12 यूनिट्स हो, 12 स्क्वायर इसमें आए. कहीं भी यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे करो, ऐसे करो, मतलब कैसे भी आप ड्रॉ करो, लेकिन इट शुड बी कवर 12 यूनिट्स. ओके, 12 स्क्वायर उसे उसमें ऑक्यूपाई होने चाहिए. सो हियर इट इज़ गिवन. आई शो यू दिस फिगर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे हमें स्क्वायर रेक्टेंगल्स हम ले सकते हैं स्क्वायर 12 स्क्वायर को ऑक्यूपाई करके. ओके, सो देयर आर टोटल 7 रेक्टेंगल्स विच कवर 12 स्क्वायर यूनिट्स. सब क्या जो यूनिट भी ऑक्यूपाई करता है ना, वो सब में 12 यूनिट्स है. फाइन. सो हियर द क्वेश्चन इज गिवन, हाउ मेनी, हियर इट इज गिवन हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक. तो यहाँ पे हमने देखा हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर. हियर आई शो यू द एक्सप्लेनेशन. हियर देयर आर 7 रेक्टेंगल्स. 7 कैसे? So first and second you can see, children, here first and second both are of 1 by 12 centimeter. 1 by 12, that means here it is 1 unit and these are 12 unit. So 1 unit multiplied by 12 unit, इतना इसमें ऑक्यूपाई किया है. दैट मीन्स 12, सब में 12 होना चाहिए. ओके, ऐसे कितने स्क्वायर्स हैं? हियर इट इज़ 2 रेक्टेंगल्स है इतने. देन here it is, one rectangle is of size 2 by 6. एक ऐसा है जिसमें 2 by 6 का है, दिस वन 7 नंबर का ये. ओके, देन आफ्टर 4 रेक्टेंगल्स ऑफ साइज 3 by 4. ये दोनों, ये एक है 3 और ये दूसरा है 3 by 4 का. फाइन. 4 रेक्टेंगल्स है, ये तीसरा और ये इट इज़ 4th. सो 4 रेक्टेंगल्स आर देयर. Hence the number of rectangles are total 7. So this way we can make 7 rectangles in this dotted line. Okay. Now children, what is given in the next? Here the answer we can write, it is 7. Fine. Each rectangle is made out of 12 equal squares, so all have the same area, but the length of boundary will be different. Area same होगा लेकिन सबकी boundary अलग है. इस boundary को हम क्या कहेंगे? That is perimeter. Here in yellow colored box you can see length of boundary is called perimeter. तो सबकी boundary अलग अलग size की होगी. Now which of these rectangles has the longest perimeter? किसकी के perimeter सबसे ज़्यादा है? Let us find out. Here is given how to find out perimeter. तो length plus breadth. मैंने आपको पहले समझाया कि 2 times length होगी plus 2 times breadth होगी. Fine. So 2 times L plus 2 times breadth is equal to 2 times L plus B. ये फॉर्मूला है, लेकिन बेटा आप नहीं अभी समझोगे तो भी चलेगा. आप चारों को एडिशन करके भी इसको पता कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज का यूज़ नहीं करना है. ओके. सो विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर? लॉन्गेस्ट पेरीमीटर अगर हम कहें सो दिस वन, क्योंकि फर्स्ट जो था 1
12, तो इसे हम अपनी तरह से कैसे लिखें, 1 लेंथ 12 प्लस विड्थ 1 प्लस लेंथ 12 प्लस विड्थ 1. So 12 plus 12, 24, 25 and 26. So these way 26 will be the answer. Okay. Now the ऐसे ही बाकी सब के भी पैरीमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो सेकेंड में हमें 16 मिला और एक है इसमें हमें 14 मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, 26 में. और ये बॉक्स कौन सा है, 1/12 का, मतलब 1 बॉक्स विड्थ के लिए है, ब्रेड्थ के लिए, और 12 जो है वो लेंथ के लिए है. सो वो जो बॉक्स मिला यहाँ पे सबसे बड़ा वाला, फर्स्ट और सेकेंड नंबर का, उसकी पैरीमीटर सबसे ज़्यादा है. ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आंसर हमें क्या लिखना चाहिए, ये कौन सा बॉक्स है, विच ऑफ दिस रेक्टेंगल, फर्स्ट नंबर का है 1/12 जिसका मेजरमेंट है. विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर. चलो पेरीमीटर फिर से देखो यहाँ पे, हियर इट इज़, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर किसकी है, यहाँ पे 14th, इसकी पेरीमीटर सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, और इसका मेजरमेंट क्या है, 3/4. तो ये रेक्टेंगल है, इट हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर. 3/4 के ये जो रेक्टेंगल थे, ये 3, 4, 5, 6, ये चारों. ओके चलो, नाउ द नेक्स्ट वन पेज इज़ गिवन मेजर स्टेम्स. स्टेम्स को कैसे मेज़र करें, तो यहाँ पे एक आपको ग्रिड दी है नीचे और उसके ऊपर कुछ स्टेम्स इसमें चिपकाए हैं. सो हम पहले इसको देखें कि इसका मेजरमेंट क्या है. द फर्स्ट वन इज़ गिवन, इसका मेजरमेंट है ए. ओके, स्टेम्प ए, इसका मेजरमेंट क्या है, लेट अस काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6. जो ज़्यादा वाला नंबर है ना वो पहले लिखेंगे. ओके, 1, 2, 3, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये इसका मेजरमेंट हुआ. वैसे ही बाकी के जो है, फॉर एग्जांपल 70 नंबर बी, वैसे ही नंबर बी जो दिया इट इज़ 4/2. नंबर सी इज़ 3/2. नंबर डी इज़ 4/3. नंबर ई इज़ 2/2 एंड नंबर एफ इज़ 4/3. सो ऐसे सबका मेजरमेंट हुआ. नाउ सी चिल्ड्रन, हाउ मेनी स्क्वायर्स, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है ये, हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टेम्प ए कवर. तो स्टेम्प ए का मेजरमेंट क्या है, ये 6 है यहाँ पे और ये 3 है, तो 6 3 ज़ा 18, तो 18 squares it cover. Fine. एंड स्टैम्प बी कहाँ है, ये, और इसका मेजरमेंट ये 4/2, तो इसका मेजरमेंट क्या है, 8 squares. फाइन, 8 squares it covers. The next one, B, which stamp has the biggest area. तो बिगेस्ट एरिया जो है स्टैम्प ए का है. हम सबके अगर काउंट करें तो हमें पता चलेगा. फॉर एग्जांपल इसका टोटल 8 स्क्वायर्स होता है, इसका होता है 8, सॉरी ये फर्स्ट है 18, सेकंड 8, देन 6, देन अगेन इट इज़ 12, देन 4, देन 12. ओके, तो सबसे ज़्यादा किसका, स्टैम्प ए का हुआ. तो हमें इसमें आंसर कौन सा लिखेंगे, बिगेस्ट एरिया ए का. नाउ हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर. कितने स्क्वायर सेंटीमीटर है, 18. ओके, 18 स्क्वायर्स इट कवर्स. हाउ मेनी हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प. जितने स्क्वायर्स है उतने ही एरिया. फाइन, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. गॉट इट चिल्ड्रन. नाउ क्वेश्चन सी, विच 2 स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया. तो यहाँ पे होगा डी एंड ई. डी का है 12 और डी एंड एफ, एफ का भी है 12, तो ये होगा डी एंड एफ. फाइन. हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज स्टैम्प्स. कितना एरिया है, ये है 4/3, दैट इज़ 12. तो इसका एरिया कितना हुआ,
12 square centimeter. Question D is given, the area of the smallest stamp is dash centimeter. Smallest stamp है ये, इसका एरिया क्या है 2/2, तो ये है 4 सेंटीमीटर इसका एरिया है. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प. अब स्मॉलेस्ट स्टैम्प का एरिया 4 है, बिगेस्ट स्टैम्प ये है, इसका 18 है, तो 18 माइनस 4, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 14. 14 is the answer. Okay. Now see children, this way we can find out the answers of given blanks. Fine. Then one activity is given. Collect some old stamps. Place them on the square grid and find their area and perimeter. तो आप ऐसा अगर करना चाहो तो you can make, आप ग्रिड बना सकते हो, या आपके पास ग्राफ पेपर है तो उसके ऊपर भी ऐसे स्टैम्प्स लगा के उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन?